Hello students, we are doing today continuation of your fourth chapter of science, that is effect of electric current. So far what we have done in the earlier past two videos were the heat effect, okay, then we have studied about the magnetic effect, and we have done the solid example also of this. We have studied about the electric motor as well, how it is functioning, okay. These all things were covered up, right? So we have studied about the electric motor, and here onwards we are continuing in this video, okay, and that is the topic. Today's topic is electromagnetic induction. So little introduction I have already given you in the first video, like what is the difference between the electromagnetic induction and the magnetic effect of electric current. हमने दोनों का difference आपको बता दिया था. Hopefully you remember it, and if not then just I'm quickly revising with you, brief दे देती हूँ मैं आपको. So here if I have a coil, okay, this is a one circuit. Let's see, here we will have a bulb, okay, and here we have the coil, kind of solenoid, and we'll keep a one magnet here, okay. यहाँ पे हमने एक magnet डाल दिया, north and south will come. So in case हमने ये magnet को ये coil के ऊपर ऐसे rub किया, okay, ये suppose coil है, okay, ये magnet अगर उसमें से हमने rub किया तो what will happen, the current will flow, okay, current यहाँ से flow होगा और this bulb will light up, okay. So that means using a magnet and rubbing it over the coil, current is formed, current is passing through the circuit, okay. So that kind of current is called induced current. ये जो phenomena, that phenomena is called the electromagnetic induction, okay. So now you're clear what is electromagnetic induction. So this is basically what the in a conducting wire a current is passed. It is generated with the help of the magnet which is overcoming the coil, और मे बी हमने या तो मैग्नेट को कॉइल के पास रब किया या तो कॉइल को मैग्नेट के पास लेकर गए. इन दोनों केसेस द करंट विल जनरेट. आई गेटिंग इट? मतलब आप मैग्नेट को कॉइल के ऊपर रब करो या कॉइल को मैग्नेट के ऊपर लेकर आओ, उसके बाजू में लेकर आओ. सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा. द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट द करंट विल फ्लो. अंडरस्टैंडिंग? So that is the phenomena is electromagnetic induction, and just like electric motor is a result of the magnetic effect of electric current, same way electromagnetic induction का क्या है? There is example is generator. You will be studying in this chapter about the generator, okay. And one more important thing is Fleming's. Here we will be going to talk about the Fleming's right hand rule, okay. Fleming's right hand रूल. हमें यहाँ पे जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर के वक्त हमने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया था, हियर वी आर गोइंग टू यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो ये दो चीज़ें जो इस चैप्टर में और इस पार्ट में कवर करनी चाहिए, और इसी के साथ साथ विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द DC जनरेटर एंड AC जनरेटर. अंडरस्टूड? सो आर यू रेडी? हाँ, एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट वी विल बी स्टडिंग अबाउट हियर इज गैल्वेनोमीटर, ओके. और गैल्वेनोमीटर क्या है उसके लिए हम अभी थोड़ा जस्ट इंट्रोडक्शन देते हैं. तो गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट लाइक अ मीटर. जैसे अमीटर होता है ना, इट मेजर्स द करंट, सेम वे गैल्वेनोमीटर ऑल्सो मेजर्स द करंट. बट अभी आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या? अगर दोनों एक ही काम करते हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो येस, देयर इज अ डिफरेंस. गैल्वेनोमीटर इज मेजरिंग द सेंसिटिव करंट, ओके. छोटा छोटा करंट भी वो मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर, जबकि योर अमीटर जस्ट मेजर्स द बिगर जो होते हैं, ज़्यादा फ्लो होता है, जो ज़्यादा इंटेंसिटी करंट होता है उसी को मेजर कर सकता है, छोटे करंट को मेजर नहीं कर सकता है. दैट इज़ अ वन डिफरेंस. द सेकंड डिफरेंस इज व्हाट? गैल्वेनोमीटर विल टेल यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज वेल, ओके. वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो भी आपको गैल्वेनोमीटर से पता चलता है, जबकि योर अमीटर ओनली टेल्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. मैग्नीट्यूड मतलब वो कितना स्पीडी है वो उतना ही दिखाई देगा. इट इज़ जस्ट टेल यू द what is the force of the current, whereas this will tell you the direction as well as magnitude. Understood the difference? This is the basic difference between the galvanometer and ammeter. In exam they may ask you, so you should remember all these things and keep a note. आप नोट बनाते जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, यू जस्ट ट्राई राइटिंग इट इन योर नोटबुक or in a textbook, wherever you want, because this all small things are useful. Right now you have listened, so you will remember it. Later on you will forget if you will not revise it. So now let's start the chapter. We are on page number 56. We have seen in the previous section that if we keep an electric conductor in a magnetic field such that direction of the current flowing through the conductor in a perpendicular to the magnetic field, then the force is exerted to the conductor. ये हमने already सीख लिया था, किसमें इलेक्ट्रिक मोटर करते हुए सीख लिया था, that if the electric magnetic conductor is kept perpendicular to the magnetic field, the current the force will be exerted. ये हमने already सीख लिया है.
ठीक है। राइट हैंड रूल में अरे सॉरी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमने देखा था द मिडल फिंगर, ओके, यू टू कीप दिस मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड द थंब इन दिस फॉर्म लाइक दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। योर मिडल फिंगर टेल यू द करंट, योर इंडेक्स फिंगर टेल you the direction of the magnetic field lines, and your thumb will tell you the force, in what direction the force is exerted, right? Then because of this the conductor moves. हमने देखा था कंडक्टर मूव्स होता है बिकॉज द करंट इज मूविंग, करंट इज पासिंग. बट इफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टेशनरी कंडक्टर इज चेंजिंग, what will happen? In order to find out an answer to this question, research was done by the great scientist Michael Faraday. So we know Michael Faraday is the man, or he is the mind behind the electric magnetic induction. जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर करते वक्त मैग्नेटिक इफेक्ट, हमने किसका साइंटिस्ट का नाम सुना था? येस, हैंस ऑस्टेड. ही वॉज द मैन बिहाइंड इट. हियर माइकल फराडे हु स्टडीड अबाउट दिस कि भाई अगर हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर को मतलब इन केस वी टेक अ कॉइल एंड इन केस वी डोंट टेक अ सेल और हम कोई वो एक्सटर्नल सेल बैटरी नहीं इस्तेमाल कर रहे, ओके, वी आर जस्ट यूजिंग इन अ कॉइल मैग्नेट कर ले रहे हैं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट ही स्टडीड. And we'll know about the little about Michael Faraday because you had a chapter also. He was not from such a rich family. He was just a poor guy. He was working in one of the shop bookstore में वो job करते थे. He even didn't completed his study as well. But वो उनको he was a fond of reading books. So he in a bookstore reading the books and all studied. उनको physics में ज़्यादा interest था. Then he studied and उनके जो जो उसके role model was a Devi. डेवी के पास वो गए, वहाँ पे जॉब किया और उनके साथ बैठ कर सीखा. सो डेवी वॉज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस इंडक्शन पार्ट बट ही वॉज नॉट सक्सीडेड इन मेकिंग इट, और इसको प्रूव करने में वो थोड़े उनकी कमियाँ थी जो माइकल फराडे ने रिमूव की, वो सारी जो ड्रॉबैक्स थे उनके. ठीक है, तो वो इनके चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो सीखा ही इन द अर्लियर स्टैंडर्ड. So now going back to the, okay, so we have one more line to read. In the year 1831, Faraday showed that an electric current, you must remember the year 1831, he showed that current can be produced in a conductor with the help of moving magnet. You please underline this. What is electromagnetic induction says? This is that line कि electric current can be produced in a conductor. Okay, ये जो हमारा conducting wire है इसमें electric current पास हो सकता है by moving the magnet, okay, around that coil. So we'll talk about the galvanometer. Galvanometer का आप simply ये okay, I will be forwarding you one of the video which will make it very clear about the galvanometer and its function, because यहाँ पे जो theory part है it will little go ऊपर से, you may not able to understand properly, so you watch that video which I will be sending along with this, which will make you clear regarding the working of galvanometer, okay, because यहाँ पे galvanometer की theory part है जो थोड़ा confusing है मुझे लगता है. बट एनी वेज यू सी हियर द गैल्वेनोमीटर ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो यहाँ पे. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द गैल्वेनोमीटर लुक्स लाइक. यहाँ पे आपको क्लियर इमेज दिखाई देगी गैल्वेनोमीटर की. इन योर टेक्स्ट बुक इट इज़ देयर. हियर इट इज़ राइट नाउ पॉइंटिंग, इट इज़ एट अ रेस्ट, इट इज़ पॉइंटिंग टू द ज़ीरो. ओके, तो जब करंट पास होता है ना तो व्हाट हैपेंस, दिस जो ये नीडल है ना इट डिफ्लेक्ट्स इधर टू द राइट हैंड साइड और इट इज़ डिफ्लेक्टिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड. ये डिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, तो इससे में ये पता चल जाता है करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो है. फॉर एग्जाम्पल हियर इफ यू हैव मैग्नेट इज देयर, अगर आपने मैग्नेट को यहाँ पे ऐसे पास किया, ओके, कॉइल के आजू बाजू मैग्नेट को यहाँ पे हिलाया, सो द ये जो नीडल है दैट विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स दिस साइड. सेम अगर आपने मैग्नेट को यहाँ पे किया, ओके, यहाँ पे आपने उसको हिलाया, मैग्नेट को पास किया, सो द करंट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ दिस साइड. ये जो नीडल है यहाँ पे, ओके, टू द राइट हैंड साइड नीडल डिफ्लेक्ट होगी. So this needle, okay, this needle will tell the direction also of the current and what ammeter का जो current है, okay, ammeter हम measure करते current को इन ammeter, तो क्या magnitude का current पास हुआ वो भी हमें galvanometer से पता चलता है. And I already told you the difference between ammeter and galvanometer. Galvanometer is basically for the sensitive current के measure करने के लिए इस्तेमाल करता है, okay, for the sensitive device. सेंसिटिव है जिसमें ज़्यादा वोल्ट और ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं होती, वेरी लेस करंट की इस्तेमाल किया जाता है, और हम सबके होम डिवाइसेस में गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है. गैल्वेनोमीटर इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस विच वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर that we have studied earlier. We can make some electrical measurements with it. A coil is positioned between the pole pieces of the magnet in such a way that the pointer on the galvanometer dial is connected to it. Okay, आप ये दोनों तरफ देखोगे there is a north and south pole होता है, जो यहाँ पे नीचे होगा ना, there is a north and south pole on both the side, and middle में there is the needle. Okay, and when a small current, let's say of 1 ampere
flows through the coil will rotate. Okay, इसका जो coil होगा वो rotate होगा. The rotation will be proportional to the current. मतलब जितना coil rotate होगा the current will flow that much. So voltmeter and ammeter also work on the same principle. जैसे voltmeter है जो volt को करता है, okay, पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करता है, दैट इज वोल्टमीटर. अमीटर जो करंट को मेजर करता है. बट हियर आई सेड व्हाई अमीटर, ये गैल्वेनोमीटर इज सेम लाइक अमीटर, बट डिफरेंस क्या है, गैल्वेनोमीटर इज गिविंग यू द स्मॉलेस्ट करंट एज वेल एंड इट विल ऑल्सो शो यू द डायरेक्शन सेम. ओके, सो इन गैल्वेनोमीटर द पॉइंटर डिफ्लेक्स. डिफ्लेक्स मीन मूव, यहाँ और यहाँ, इधर और दिस साइड. हियर इट इज एट रेस्ट, राइट नाउ इट इज ऑन जीरो, ये साइड और दिस साइड, sides of the zero and mark depending on the direction of the current. So understood about the galvanometer. ये short run में आ सकता है. Now going to the next paragraph. Collect the material as shown figure 4.15 like this. Okay, you have the experiment to do here. आपने ये जो circuit है उसको attach किया है galvanometer के साथ and you have 2 poles of the magnet here. Okay, and आपके पास ये 2 copper wire है. Complete the circuit by connecting the galvanometer. Keep the bar magnet erect such a way that its north और साउथ पोल इज जस्ट बिलो द कॉपर वायर. जो कॉपर वायर है उसे नीचे मैग्नेट हमने रखा है. ओके, मैग्नेट इज नॉट टचिंग द कॉपर वायर. जस्ट मेक श्योर दैट मैग्नेट इज नॉट टचिंग द कॉपर वायर. सो नाउ इफ द वायर इज केप्ट मूविंग, अगर वायर को हमने मूव किया, मैग्नेट के आजू बाजू वायर को मूव किया, तो भी करंट विल पास. ओके, एंड इफ द करंट विल पास द नीडल विल डिफ्लेक्ट. आप देख सकते हो नीडल इज नॉट एट जीरो राइट नाउ. नीडल इज यू आर पॉइंटिंग टू सम ऑफ द अमीटर के वहाँ पे दिखा रही है हमें 100 and 200 के बीच में नीडल इज शोइंग पॉइंटिंग आउट, राइट. सो मीन्स इफ यू आर मूविंग द वायर over the magnet, still the current is passed. Or if you move the magnet over this current or over this conducting wire, then also the current will generate, current will produce, and then also ये जो current galvanometer की जो needle है वो move होगी. Okay, so if the wire is kept moving like A to B, इस तरह से हमने इसको move किया. Okay, the pointer of the galvanometer gets deflected. This is called Faraday's electromagnetic induction. So now we are clear what is electromagnetic induction. Okay, so now more the magnet with the wire fixed, the galvanometer point still gets deflected. तो जितना आप उसको मूव करोगे, जितना आप मैग्नेट को मूव करोगे या कॉइल को मूव करोगे, ओके, या आप वायर को मूव करो या मैग्नेट को मूव करो, प्रोड्यूस क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज okay, so for 4.16 का जो A पार्ट है, when the current in the solenoid coil is switched on or off. अभी सोलेनॉइड क्या होता है वो हम समझते हैं. कोई भी नॉर्मल वायर ले लो, ये वायर है फॉर एग्जांपल, और इस वायर को हमने लूप में से बैंड डाउन किया लाइक ओके, जैसे ये वायर स्ट्रेट वायर है, ठीक है. इस स्ट्रेट वायर को हमने लाइक हमने इसको विंड अप किया. ओके, दिस लूप इज कॉल्ड सोलेनॉइड, इसको सोलेनॉइड कहते हैं. तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कॉइल, जो ये कॉइल भी है, लेकिन कॉइल और सोलेनॉइड में थोड़ा बेसिक फ़र्क है. सोलेनॉइड होता है उसमें जो कॉइल होता है दैट इज अ होलो, मतलब ये सिर्फ ऐसे स्प्रिंग जैसा उसका शेप होता है, ठीक है, दैट इज कॉइल. सोलेनॉइड में इसके बीच में कुछ आयन आर्टिकल है कुछ होगा और उसके ऊपर इस कॉइल, उसके ऊपर ये वायर को बैंड किया जाता है. ओके, सो देयर इज अ वुडन आर्टिकल और आयन आर्टिकल एंड ओवर देयर द वायर इज बैंडेड लाइक दिस इन द लूप फॉर्म लाइक अ स्प्रिंग. दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड. Alright, so now coming to this, so when the current in the solenoid coil is switched on or off. ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे. You can see in this 4.6a you have one circuit, solenoid है, यहाँ solenoid coil है, बैटरी है, प्लग है, बैटरी है और प्लस ओके, करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के ऊपर भी कॉइल है, ठीक है, ये इसकी गैल्वेनोमीटर की कॉइल है. सो complete the circuit as shown in the figure 4.16a. Discuss about the select the component as required in the experiment. If we open the plug, okay, यहाँ पे आप देख सकते हो the plug is open and make the current zero in the coil, then the point of the galvanometer deflects to a side and quickly comes back to zero. Okay, ये चीज़ को, ये जो पैराग्राफ है ना, उसी की मैं बात कर रही हूँ कि इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है इज देयर इन द वन ऑफ द वीडियो विच आई एम गोइंग टू सेंड यू आफ्टर दिस माई वीडियो गेट ओवर, बिकॉज वो वीडियो आपको क्लियर ये पूरा समझा देगा. अगर आपको अभी नहीं समझ में आएगा तो वो उस वीडियो में डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएगा. तो ये इसका मतलब क्या है, सपोज एक सेकेंड. ओके, सो एज यू कैन सी I have the two conducting wires here. Okay, this is here we have the battery and the plug and the coil. Here we have a galvanometer. This is your galvanometer. ठीक है, and here also we have the coil. So what will happen when we are bringing this coil and the magnetic copper wire together?
सो इट विल बी यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा. ओके, हियर इनसाइड देयर विल बी पैरेलल, इनसाइड दे विल बी रनिंग पैरेलल. ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक जो लाइंस होगी दैट विल बी पैरेलल. सो यू कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ चेंज इट्स लाइक यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ना दैट इज़ चेंजिंग. तो जैसे ही आपने मतलब कि यहाँ पे स्विच ऑन किया हुआ है, ओके, यहाँ पे जैसे स्विच ऑन किया, ये जो नीडल है ना थोड़ा मूव हुआ एंड वापस इट केम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन 0. यानी कि क्या हुआ यहाँ पे स्लाइट, अगर जैसे अपने स्विच, जैसे हमने अपने घर पे स्विच ऑन करते हैं ना, जैसे स्विच ऑन करते हैं व्हाट विल हैपन, ये जो कॉइल है ना, आई मीन जो कैलोरीमीटर के वहाँ पे जो कॉइल है, सी दिस एक्चुअली विल बी वेरी क्लियर विद द वॉचिंग दैट वीडियो. आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी ईजियर बट somehow that is not able to convey by me, so you watch that video definitely which will make it very clear. I'm trying my best to teach you this part. Okay, so here what will happen, as soon as you on the switch the magnetic field will change here. तो because the magnetic field has changed, the यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी. ओके, इट विल डिफ्लेक्ट, यहाँ पे डिफ्लेक्ट होके इट वॉज लाइक दिस, इट इज़ डिफ्लेक्टेड एंड ये डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हुई, पर अगेन इट विल कम बैक टू द रेस्ट डायरेक्शन, ये वापस रेस्ट डायरेक्शन में चली जाएगी. बिकॉज वंस यू ऑन द स्विच देर इज़ नो मोर डिफ्लेक्शन नाउ. जैसे आपने एक बार ऑन किया वो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, when the needle moves in the galvanometer, only when the magnetic field changes, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तभी गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है ना उस चेंज इट्स डायरेक्शन, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज इन द लाइक रेस्ट पोजीशन 0 पर रहता है. सो जैसे आपने ऑन किया फॉर सम मोमेंट व्हाट हैपेंड, मैग्नेटिक फील्ड हैज़ चेंज्ड, बट आपने उसको ऑन ही छोड़ा है, इसके लिए मैग्नेटिक जो फील्ड है वो एज इट इज़ स्टिल है, देयर इज़ नो चेंज, इट इज़ स्टिल लाइक दैट. So it has come back to the 0 position once again. Same when you off the switch, जब आप ऑफ करते हो स्विच को तभी वही होता है. तभी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में से ये जो नीडल है थोड़ा मूव होता है, थोड़ा डिफ्लेक्ट होता है, अगेन इट विल कम बैक टू 0. Now you will ask me कि why, when you on that time also it deflect and come back to 0, when you off the switch that time also it deflect and come back to 0. The same rule it applies. When you off for some moment there will be a change in the magnetic field. यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर अ सर्टन पीरियड. जैसे आपने ऑफ, अभी आपने ऑफ ही रखा है, स्विच इज ऑफ, यानी कि देयर विल बी नो फर्दर मूवमेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. गेटिंग इट? तो अभी कोई मूवमेंट नहीं है, इसके लिए इट विल कम बैक टू द 0. सो नाउ वेरी क्लियरली आप एक चीज़ समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, मैग्नेटिक लाइन्स चेंजिंग होती है, तभी व्हाट हैपेंस, गैल्वेनोमीटर में ये जो नीडल है डिफ्लेक्ट होती है. सो व्हेन द नीडल डिफ्लेक्ट्स इधर लेफ्ट और राइट ओनली इफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस. अंडरस्टूड? या इफ देर इज़ नो चेंज, मतलब कुछ चेंज नहीं है, स्टेबल है मैग्नेटिक लाइन्स, देन व्हाट विल हैपन, द गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, इट विल जस्ट बी एट रेस्ट. जैसे ऑन किया थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ, वापस इट कम बैक टू द पोजीशन. आप देख सकते हो, यू हैव टू जस्ट सी द पेन्स मूवमेंट. जैसे हमने स्विच ऑन किया देयर इज़ अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, सो इट डिफ्लेक्ट, अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज स्टिल है, तो अगेन इट कम बैक टू 0. सेम वापस जब आपने स्विच ऑफ कर दिया, अगेन थोड़ा यहाँ पे चेंज हुआ तो ये डिफ्लेक्ट हुआ, अभी ये चेंज नहीं है, अभी ये स्टिल हो गया, तो वापस रेस्ट पर आ गया. अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज़ वॉट इट इज़ गिवन यू हियर. आप रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हो, और वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना. आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो. डिस्कस अबाउट द सिलेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ रिक्वायर्ड. ओके, in this experiment if you open the plug key and make the current 0 in the coil, the pointer of the galvanometer deflects to a side and quickly come back to 0. Now I told you why it come back to 0, because there is no further movement in the magnetic field. So if the current of the soil is started again, the pointer again deflect to the other side and then returns quickly to 0. Okay, वापस अगर आपने ऑन किया वापस वो डिफ्लेक्ट होगा, वापस come back to 0. Now when the electrical current is flowing through the solenoid coil and the solenoid coil displaced with respect to the coil, the current is still produced in the coil. Current is still produced in the coil. What can be inferred from this two experiment? So here is a जो भी इसका inference है, जो भी conclusion, it is in this paragraph. You have to learn this paragraph. Even if the solenoid coil is kept stationary, मतलब अपने solenoid को ऐसे stationary मतलब still रखा है, no movement. Okay, then also it produces a current in the coil. If the solenoid coil is moved towards or away from the coil, we see the deflection of the current. ये आपने इस solenoid coil को coil के बाजू में लाया या दूर किया, बाजू में लाया तो भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, सो देयर विल बी करंट फ्लो इन दिस कॉइल. आप उसको दूर लेकर गए, देयर ऑल्सो देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, सो करंट विल फ्लो. आर यू गेटिंग इट?
डिफ्लेक्ट होगा कॉइल में, गैल्वेनोमीटर में करंट कॉइल में डिफ्लेक्शन होगा. वाई? बिकॉज यू मूव और यू टेक इट अवे, देर इज़ अ चेंज इन द मैग्नेटिक लाइन्स. ये फील्ड में चेंज हो रहा है. जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज होगा देर विल बी अ करंट फ्लो इधर लेस और मोर, एंड द कॉइल आई मीन एंड द गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी, इट विल डिस्प्लेस. So we see deflection of the galvanometer also. The faster is the displacement of the solenoid, larger is the deflection of the galvanometer. जितना solenoid आपने जितना उसको मूव किया, जितना fastest, जितना displace ज़्यादा किया, उतना deflection ज़्यादा होगा. If the current in the solenoid coil is changed, okay, the current is produced in the coil, or if the solenoid coil is moved towards the coil, then also current produces in the coil. इस बारे में पूरा आपको clarity मिल जाएगी in the video, you must watch. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, जो हमने ऑलरेडी सीखा है उसी के ऊपर ये है. ओके, जिसके बाद हम करेंगे राइट हैंड रूल. इफ द करंट इज स्विच्ड ऑन और ऑफ इन द सोलेनॉइड कॉइल, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. सी दिस काइंड ऑफ करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. याद रखना, फॉर इंडक्शन विल कॉल इट इंड्यूस्ड करंट, बिकॉज करंट वो अपने आप पैदा हो रहा है. सी व्हाट हैपन्स इन द मोटर, या जो हमने पहले सीखा था मैग्नेटिक इफेक्ट में, क्या होता है कि करंट को आपको पास करना पड़ता है. यू हैव टू पास द करंट, right? And here what happens in the induction, it produces current on its own. उसको कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए, वो अपने आप प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, so that is induced current. Such an induction is also observed when the current in solenoid coil is increased or decreased. Current is induced in the coil when it is moved aside from front of the solenoid. From this experiment, it is understood that whenever the number of magnetic lines of force passing through the coil changes, current is induced in the coil. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है क्या है, और मैंने ये बार बार कहा है. whenever number of magnetic lines, okay, if there is a change in the magnetic lines, current जो होता है कॉइल में चेंज होता है, राइट. करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक लाइंस. फील्ड में चेंज हुआ, करंट पास हुआ, थोड़ा या कम, ज़्यादा या कम. हाँ, इफ देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक लाइंस, मतलब मैग्नेटिक लाइन स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो करंट पास होना बंद हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. So, passing through the coil changes, current is induced in the soil. This is known as Faraday's law of induction. The current produced in the coil is called induced current. Okay, ये जो current पास अपने आप हुआ है, अपने आप produce हुआ है, that current is called induced current. Okay. Now coming to the Fleming's right hand rule. See, you have to use right hand. Okay, आपको अपना right hand use करना है. I am using my right hand here. So right hand में भी just like the previous left hand का जो rule था वही हमें याद रखना है. But here also you have to keep to stretch your thumb, your index finger and your middle finger such that they are perpendicular to each other. Like see, you can see they all three are perpendicular to each other, correct? Hold your hand like this. Now what is your thumb denotes? Your thumb denotes, आपका thumb क्या denote करता है? Your thumb denotes the conductor, motion of the conductor. Conductor कौन से motion में move कर रहा है, that is the thumb says. Okay, your index finger shows you the direction of the magnetic field. कौन से direction of magnetic field है वो दिखाता है. And your middle finger shows you the direction of induced current. ये current कौन से direction में flow हुआ, produce हुआ, that is shown by your middle finger. Understood? So इसके लिए हम simply एक clarity के लिए I'll draw here. Okay, so we'll take same like हमें एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लेना है. एक मैग्नेट का, आप तो होर्शो मैग्नेट ले लो या कोई दूसरे दो मैग्नेट लो, जिसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल ले लो. और ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रही है, दैट इज योर मैग्नेटिक लाइंस. ओके, दिस आर योर मैग्नेटिक लाइंस. यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस जनरेट होती है बिटवीन द टू पोल्स. और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये कंडक्टर रख दिया विच विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस. वी नो दैट द कंडक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस. राइट दिस. ओके, हमने ये रख दिया. चलो नेम दे देते हैं A, B, C एंड D. You will see it is similar to the motor EIs. इसका जो फंक्शनिंग है ना विल बी सिमिलर, मीन इसका जो डायग्राम है विल बी सेम. अभी आप समझो क्या हुआ है यहाँ पे. हाउ वी विल, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस, नॉर्थ टू साउथ ऑलवेज. ओके, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ना ये जो कंडक्टर है उसको मूव करना है, इसको रोटेट करना है. ठीक है, लेट्स से हम इसको किस तरह से रोटेट कर रहे हैं. जस्ट अ सेकेंड. टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ फॉर लाइक, ये जो है ये चीज़ें इन मिडल है, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और बीच में ये कंडक्टर है. अज्यूम कर लो ये कंडक्टर है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है. ओके, इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस. ये कैसे रोटेट हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है. कंडक्टर का ये जो मोशन है ना, दिस इज मोशन इज दिस डायरेक्शन. मतलब ये जो CD पार्ट है वो ऊपर आ रहा है, CD पार्ट ऊपर आ रहा है, और AB नीचे जा रहा है. ओके, CD क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, AB नीचे जा रहा है. यानी हम ये कह सकते हैं
जो CD पार्ट है इट इज़ आउटवर्ड, ओके, ये आउटवर्ड है, और ये जो AB पार्ट है वो क्या है, इनवर्ड है, इनवर्ड है, राइट। AB समझ में आ रहा है, ये तो दो पोल्स है, उसके बीच में ये पेन है, ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो ये जो CD का पोर्शन है वो ऊपर आ रहा है, AB पोर्शन नीचे जा रहा है, ओके, लाइक दिस। ये वन रोटेशन, हाफ रोटेशन हुआ, ये कंप्लीट रोटेशन हुआ। तो अब इसमें हमें इसमें हमें चेक करना है वेयर द करंट इन व्हाट डायरेक्शन इट इज़ पासिंग। तो हमें राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है। आई एम यूजिंग माई राइट हैंड थंब रूल, यू ऑल्सो यूज योर राइट हैंड थंब रूल एंड जस्ट डू इट अलॉन्ग विथ मी। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि हाँ ओके, हमें क्या क्या दिखा रहा है, हमें वो चेक करना है। सबसे पहले अवर इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स, ओके। हम वी आर टॉकिंग अबाउट AB में करंट कौन से डायरेक्शन में पास हो रहा है, हमें वो चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, AB के लिए व्हाट इज़ इट डूइंग, करंट मैग्नेटिक लाइन्स की ये डायरेक्शन है, ये साइड एरो है टूवर्ड्स दिस साइड, सो विल पुट द पॉइंट लाइक दिस। राइट हैंड इस्तेमाल करना है आपको, तो वी आर यूजिंग दिस, ठीक है। उसके बाद सी अभी आपको ये थंब का इस्तेमाल करना है टू डिनोट इन व्हाट डायरेक्शन द कंडक्टर इज मूविंग। वो कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो चेक करना है। तो कंडक्टर इज गोइंग इनवर्ड, सो अंदर की तरफ लेंगे हम, राइट, इनवर्ड जा रहा है अंदर की तरफ। तो दिस इज माई व्हाट लाइन, दिस फिंगर शोज मी द मैग्नेटिक लाइन्स, दिस थंब शोज मी इन व्हाट डायरेक्शन द करंट, आई मीन करंट नहीं, इन व्हाट डायरेक्शन द कंडक्टर इज मूविंग। तो हमारा ये जो आप देख सकते हो, हमारा ये जो मेरा ये जो मिडल फिंगर है, ओके, ये मिडल फिंगर नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। इफ आई प्लेस इट लाइक दिस, ओके, इसको मैं इस तरह से प्लेस करूँगी, आपको समझ रहा है, या फिर मैं इसको ऐसे ऊपर ऐसे खड़ा कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, आई जस्ट प्लेस इट अप लाइक दिस। नाउ यू सी हियर इज़ व्हाट, आपकी लाइन क्या दिखा रहा है, ये आपको मैग्नेटिक लाइन्स, ओके, आपको ये अंदर की तरफ जा रहा है, दिस थंब इज गोइंग इनसाइड, सो योर दिस वन फिंगर इज शोइंग इट्स गोइंग डाउन, फिंगर आपका नीचे दिखा रहा है, यानी कि करंट इज गोइंग डाउनवर्ड। करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉर AB। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CD में भी वापस राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे टू चेक इन व्हाट डायरेक्शन द करंट इज मूविंग। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस योर इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स विच इज़ दिस डायरेक्शन, ठीक है, लाइक दिस। फिर हमें अपना वो क्या करना है, थंब कहाँ पे, अभी यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन है, मतलब कि ऐसे आ जाएगा, ओके, आपको समझ में आ रहा होगा होपफुली, ओके। करंट, ओके, सी अगेन प्रॉपरली लुक, यू हैव टू इंडेक्स फिंगर आपको कहाँ दिखा रहा है, मैग्नेटिक लाइन्स दिखा रहा है, ठीक है। दिस इज विल बी शोइंग यू, ये अपने तरफ थंब अपने तरफ आएगा, क्यों, बिकॉज ये आउटवर्ड है ना, CD में ये जो है CD आउटवर्ड है, मैंने कहा था ना CD किस तरह से मूव हो रहा है, ये जो मैंने कहा था आप CD इस तरह से मूव हो रहा है, यानी CD ऊपर आ रहा है, बाहर आ रहा है, ओके, इस तरह से मूव हो रहा है, यानी कि CD इज अपवर्ड आउटवर्ड। सो सी दिस इज, ओके, चेक दिस वे, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक लाइन्स दिखा रहा है, दिस थंब आपको अपनी तरफ लेना है बिकॉज आउटवर्ड है। तो ये मिडल फिंगर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर तरफ इस शोज, ये ऊपर तरफ शो कर रहा है, मतलब है करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ, ओके, इट्स शोइंग अपवर्ड। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको ध्यान से समझना है। वापस समझ में ना आया हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी लेटर ऑन, आई मीन टू से। हमें राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है टू चेक इन व्हाट डायरेक्शन द करंट इज मूविंग। So you have to use your right hand for that. Fleming's right hand rule says your thumb shows the motion of the conductor. कौन से मोशन यानी बाहर किस तरह से कंडक्टर मूव हो रहा है, ओके, किस तरह से रोटेट हो रहा है, दैट इज शोन बाय थंब। योर इंडेक्स फिंगर शोज यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स एंड मिडिल फिंगर विल शो यू द करंट, कौन से डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है वो। अगर हम AB की बात करें तो AB में ये अंदर की तरफ जा रहा है, ओके, ये जो कंडक्टर का मोशन है वो अंदर की तरफ है और CD का बाहर की तरफ है कंडक्शन का मोशन, ठीक है। तो हम अगर AB में बात करते हैं, आई विल प्लेस माई इंडेक्स फिंगर टू शो द लाइन्स, मैग्नेटिक लाइन्स दिस डायरेक्शन, ओके, देन आई विल शो माई थंब, इट इज़ गोइंग इनसाइड बिकॉज अंदर की तरफ जा रहा है, कंडक्टर इज़ गोइंग इनसाइड, मोशन जो उसका है वो अंदर की तरफ है। तो मेरी ये मैग्नेटिक लाइन्स क्या हो जाएगी, यानी मेरा ये जो फिंगर का मिडल फिंगर वो नीचे पॉइंट करेगा। आप भी अपना प्लेस करके देख सकते हो, ये मिडल फिंगर विल बी प्लेसिंग इट डाउन, मतलब ये करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर हम CD की बात कर रहे हैं तो CD में वापस आपका जो आपका इंडेक्स फिंगर विल शो यू द मैग्नेटिक लाइन्स, आपका थंब विल शो यू इट इज़ द इन व्हाट डायरेक्शन योर मोशन का क्या कंडक्टर का मोशन इज़ आउटवर्ड है, तो हम आउटवर्ड डायरेक्शन में लाएंगे, ओके, लाइक दिस।
तो आपका ये जो मिडल फिंगर है वो ऊपर की तरफ दिखाएगा, ऊपर की तरफ दिखाएगा, मतलब कि हियर द करंट इज मूविंग अपवर्ड, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। सो नाउ तो दिस इज वॉज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। यहाँ पे खुद इंड्यूस करंट का डायरेक्शन में पता चल जाता है। नाउ read about the Fleming's right hand rule. When will the induced current in the electrical conductor be maximum? It will be maximum when the direction of the motion of the electric conductor is perpendicular to the magnetic field. In order to show the direction of the induced current, Fleming's right hand rule is very useful. Stretch the thumb, index finger and the middle finger in such a way that they will be perpendicular to each other. हमने already हमें ऐसे ही place करना है so that they are perpendicular to each other. Then in this position the thumb indicates the direction of the motion. ओके जैसे डायरेक्शन मतलब ये इस तरह से डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है अपवर्ड है, ओके, और इसका जो डाउनवर्ड है इनवर्ड है, मतलब इनवर्ड एंड आउटवर्ड। देन the index finger will show you the direction of magnetic lines. Index finger will show you the direction of magnetic line which is always from north to south, and your middle finger will show you the direction of induced current which is upward or downward. This is known as Fleming's right hand rule. Understood? Okay. So now you check this scientist के बारे में आप read कर लो. Michael Faraday was an experimental scientist. He was not formally educated, मतलब उसको कोई proper degree नहीं थी. Teenager Michael Faraday started working in a book binding shop, and while reading the books there, he got interested in science. Sir Davy appointed him as a laboratory assistant in the Royal Institute, London, and there he discovered the laws of magnetic induction and laws of electrolysis. Several universities offered him honorary degree, क्योंकि उनको फॉर्मल एजुकेशन के बिना इतना अच्छा कुछ नॉलेज मिल गया था कि बहुत इंस्टीट्यूट ने चाहा कि वो हमारे स्टूडेंट बने, लेकिन ही रिजेक्टेड ऑल ऑफ देम. ओके, सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, बिफोर वी डू द AC एंड DC जनरेटर, पहले हम क्या करेंगे, जनरेटर के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम AC और DC के बारे में बात करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है. जैसे हम इलेक्ट्रिक मोटर का काम किया था वैसे, लेकिन दोनों का समझो. देखो, मशीन एक ही होता है, दैट सेम मशीन कैन वर्क एज अ जनरेटर और इट कैन वर्क एज अ मोटर. समझ में आया? हाँ, मैंने सच कहा है, आप ध्यान से सुनो. अ सेम मशीन कैन वर्क एज अ जनरेटर और एज अ मोटर. व्हेन इट वर्क्स एज अ मोटर, when you apply electric energy and it converted into mechanical energy, then it is a motor. तो वो मोटर का काम करता है. ओके, मतलब खुद ब खुद रोटेट है. आपने करंट पास किया और वो खुद ब खुद रोटेट हो रहा है. वो खुद ब खुद, जैसे फैन है, जिससे वो खुद ब खुद रोटेट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर. लेकिन अभी हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ इसके साथ अटैच है, ठीक है. यहाँ पे कोई एक्सेल है, उसको हम मूव कर रहे हैं, हमने एक्सेल उसको दिया, एक्सेल दिया. यहाँ पे करंट मैग्नेटिक की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस जनरेट हुई है, और उसके बाद उसमें ऑटोमेटिक करंट जनरेट हो गया और वो खुद रोटेट होने लगा. दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक जनरेटर. मीन्स आपने यहाँ पे ये एक्सेल दिया, उसको ऐसे टर्न किया, और इसको जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे खुद ब खुद पास हो गया और वो खुद ब खुद रोटेट होने लगा. ओके, एंड दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? जनरेटर. आर यू गेटिंग इट? जनरेटर एंड मोटर दोनों का मतलब एक ही फिगर, एक ही होता है, बट थोड़ा चेंजेस हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है. और वो चेंज क्या है वो हम डायग्राम से सीखेंगे. तो यहाँ पे यू हैव अ डायग्राम, सी द टर्न पेज करो. यस, ओके, यहाँ पे आप देखोगे इसकी वर्किंग जो है, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू योर दैट वन. विच वन? येस, इट इज़ सिमिलर टू योर मोटर. आपको नया डायग्राम नहीं सीखना है, सेम ही डायग्राम करना है. यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल ले लिया, योर वी हैव टेकन द साउथ पोल, ठीक है. और यहाँ पे बीच में हमने एक कॉइल बिठा दिया है, ये यहाँ पे कॉइल है, यहाँ पे उसकी हमने रिंग है, यहाँ पे वी हैव अ स्प्लिट रिंग. एज आई टोल्ड यू, देयर इज़ अ स्प्लिट रिंग होती है, ठीक है. यहाँ पे ब्रशेज़ होते हैं, कार्बन ब्रशेज़, एंड हियर वी हैव अ सर्किट, ठीक है. यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाना है, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाना है, ठीक है. यहाँ पे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरेटर क्या करेगा, करंट, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा, तो उसको मेजर करेगा जनरेटर. यहाँ पे वो खुद ब खुद जनरेट कर रहा है. यहाँ पे इसको बैटरी या सेल की ज़रूरत ही नहीं है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, सो इट डू नॉट नीड अ सेल और अ बैटरी. वो करंट खुद ब खुद प्लस होगा, ठीक है. हम इसको नाम दे देते हैं, लेट्स नेम इट. हियर इट इज़ A, B, C एंड D. ये कॉइल का नाम है, और ये डायरेक्शन है, क्या है ये? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक लाइन्स, नॉर्थ टू साउथ, राइट. और यू कैन सी दिस इज AB इज परपेंडिकुलर एंड इवन CD इज परपेंडिकुलर, राइट. वो तो मैग्नेटिक लाइन्स, तभी करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता है.
and we have here we have B1 and B2 and R1 and R2. These are the two conducting. यहाँ पे उन्होंने conducting ring नाम दिया. You can call it as a split ring also. ठीक है, यहाँ पे ये एक्सेल पे ड्रॉ किया हुआ है. आप नॉर्मल ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट इश्यूड एट ऑल. तो यहाँ पे हमने नाम दे देना है B1 एंड ओके, यहाँ पे हमने S1 और S नाम दे देना है, S1 एंड S2 के स्प्लिट 1 रिंग, स्प्लिट 2 रिंग, एंड यहाँ पे हम B1 B2. तो दिस मच पोर्शन जो होता है ना, ये मूव होता है जब भी मतलब मैग्नेटिक लाइन्स यहाँ पे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रोटेशन होगा. दिस मच पार्ट यानी S1 S2 यहाँ तक रोटेशन होगा. ये फिक्स्ड है, B1 से लेकर ये जो पार्ट है दिस इज फिक्स्ड. ओके, यहाँ पे हमने X और यहाँ पे हमने Y दे दिया है नेम्स. तो दिस पार्ट B1 B2 X1 X1 ये फिक्स्ड है. दिस पार्ट क्या होता है, ये रोटेट होता है, ये रोटेट होता है. अभी हम बात करते हैं, लेट्स सी, ये ABCD है, रोटेशन इस हिसाब, इन दिस डायरेक्शन इट इज़ हैपनिंग, इन दिस डायरेक्शन इट इज़ हैपनिंग. यानी ये CD ऊपर आता है और AB नीचे जाता है. CD ऊपर आता है, AB नीचे जाता है. ये डायरेक्शन में मोशन है. कंडक्टर का मोशन क्या है, AB अंदर की तरफ जा रहा है इनसाइड एंड CD आउटसाइड. ठीक है, अभी हम बात करते हैं कंडक्टर में कैसे करंट कैसे कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है. तो अगर आपने ये समझा होगा, ये जो मैंने राइट हैंड रूल थंब बताया, राइट हैंड रूल बताया फ्लेमिंग्स का, वैसे ही यहाँ पे भी हम राइट हैंड रूल ही यूज़ करने वाले हैं. चेक करो कैसे करेंगे. देखो वापिस AB में हमें देखना है कि करंट कौन से डायरेक्शन में पास हो रहा है. तो AB का जो मोशन है वो इनवर्ड है, यानी थंब विल शो यू इनवर्ड. ठीक है, व्हाट अबाउट मैग्नेटिक लाइन्स, आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, राइट हैंड का इस्तेमाल करना है. ठीक है, थंब इज गोइंग इनवर्ड. ओके, यहाँ पे हमने ऐसे दिखाना है, तो थंब इज गोइंग इनवर्ड. ओके, और मैग्नेटिक लाइन्स की ये डायरेक्शन है, तो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाई होगी. ओके, यहाँ पे मेरी आपको मिडिल फिंगर दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप अपने फिंगर से इस्तेमाल करके देख सकते हो. आपको अपना थंब बुक की तरफ रखना है, बिकॉज इनसाइड इट्स गोइंग, सो मेरा बुक की तरफ जा रहा है. ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इस तरह से जा रही है, और मेरी जो करंट की लाइन है मिडिल फिंगर वो नीचे की तरफ जा रही है. यानी हियर मैग्नेटिक लाइन्स में AB में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में पास हो रहा है. ठीक है, सेम वे अगर CD में बात करूँगी तो CD इज़ अपवर्ड. CD में क्या है, फिंगर ये जो हमारा मैग्नेटिक लाइन्स तो इसी डायरेक्शन में है. ओके, नॉर्थ साउथ, लेकिन थंब ऊपर के डायरेक्शन में बताएंगे, बिकॉज अपर डायरेक्शन है, ऊपर नहीं लेकिन मेरी तरफ. आई विल शो द थंब टुवर्ड्स मी. ओके, सो माई मिडल फिंगर इज शोइंग अपवर्ड, यानी करंट इज़ फ्लोइंग अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन. तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, यहाँ से CD, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से नीचे आ रहा है. ओके, D to C, C to B, B to A, A to S1, S1 to B1, B1 to X, X to Y, Y to B2, B2 to C2, S2, S2 से D. इस तरह से करंट पास हो रहा है. राइट, यहाँ पे ये पूरी सर्किट कंप्लीट हुई, यानी X डायरेक्शन से Y डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है. X to Y डायरेक्शन समझ में आ रहा है कैसे, D से C B A, D C B A, then S1 B1 X Y B2 S2, and then the circuit is over. ये हाफ रोटेशन हुआ. ये क्या हुआ, हाफ रोटेशन हुआ. वापस क्या होगा, हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना देते हैं वापस. अभी ये जो D है इधर आ गया, बिकॉज ओके ये फ्लिप हो गया ना, दिस इज़ नाउ, ये फ्लिप हो गया. तो ये AB है, ये CD है, ये फ्लिप हो गया. ओके, तो ये AB यहाँ पे आ गया और CD यहाँ पे आ गया. ओके, तो यानी दिस इज़ योर CD एंड दिस इज़ योर AB. वापस हमने यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू अटैच योर ऑल द, यहाँ पे हमने स्प्लिट रिंग लगा दी. ओके, यहाँ पे उसके कार्बन ब्रशेस डाल दिए, और यहाँ पे सर्किट है, गैल्वेनोमीटर है. ठीक है, ये हमने अटैच कर दिया. बट एज आई टोल्ड यू, ये X Y तो सेम ही डायरेक्शन रहेगा. ओके, और यहाँ पे B1 B2 भी सेम ही रहेगा, बिकॉज दिस मच पार्ट रोटेट नहीं होता है, ऊपर का पार्ट रोटेट होता है. यानी अभी ये S2 हो गया और ये S1 हो गया. ठीक है, समझ में आ रहा है, बिकॉज S1 के वहाँ पे A था ना, तो यहाँ पे आ गया. वापस क्या होगा, करंट मैग्नेटिक लाइन्स यहाँ पे जो है ये परपेंडिकुलर है, हम वैसे ही करेंगे. ये वापस इनवर्ड जाएगा, ये अपवर्ड होगा. वापस यहाँ पे जो करंट होगा वो डाउनवर्ड होगा. ओके, यहाँ पे जो करंट होगा वो अपवर्ड होगा. यानी यहाँ पे करंट कैसे पास होगा, तो कैसे होगा, A to B, B to C, C to D, D से S2, S2 से B1, B1 से X, X से Y, Y से B2, B2 से S1. ओके, यही डायरेक्शन हुआ. यहाँ पे भी X to Y में ही करंट पास होगा. इस तरह से करंट क्या होता रहेगा, पास होता रहेगा, और ये जो करंट पास होगा और ये रोटेट होता रहेगा इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में. करेक्ट. सो दिस इज़ व्हाट द जनरेटर इज़, दिस इज़ व्हाट इट इज़, जनरेटर. तो वापस
अभी करंट ए बी सी डी डायरेक्शन में है, वापस रोटेशन के बाद डी सी बी ए, ए बी सी डी, डी सी बी, ए बी सी डी, इस तरह से करंट की डायरेक्शन बदलती रहेगी आफ्टर एवरी रोटेशन। ओके, ये जो हमने देखा ना, ये इस टाइप का जो करंट है ना, वेयर द करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, करंट इज एक्स टू वाई, हियर इज ऑल्सो करंट इज एक्स टू वाई, दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। डीसी करंट मीन्स डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी करंट भी बोलते हैं। ओके, तो डीसी करंट मतलब क्या, द करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, जितना भी रोटेशन कर लो आप, द करंट इज इन सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डीसी करंट। और डीसी करंट को हम नॉर्मली, ये जो हम नॉर्मल जो सर्किट में यूज़ करते हैं ना, ओके, इसी तरह से हम यूज़ करते हैं। ये जो इस तरह से जो सर्किट बनती है और ये जो बनता है, ये करंट जो करता है, हमेशा करंट क्या होता है, प्लस से माइनस में ही जाता है, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव में ही करंट हमेशा पास होता है। तो ये टाइप का जो करंट होता है, जो एक ही डायरेक्शन में करंट पास होता है, दैट इज कॉल्ड डीसी करंट। नाउ एसी करंट क्या होता है, तो एसी करंट में यू हैव, दिस इज अ वेव लाइक, ये जो साइन वेव साइन दिख रही है ना, दैट इज अ एसी करंट। ओके, एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट। नाउ व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स करंट कभी एक रोटेशन में करंट ऐसे पास हुआ, ओके, दूसरे रोटेशन में करंट ऐसे पास हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो दैट इज एसी। वापस नेक्स्ट फ्रिक्शन ऑफ टाइम में वापस करंट अलग डायरेक्शन में हुआ। मतलब इसका जो एसी में क्या होता है, जो फ्लो ऑफ करंट है ना, ओके, फ्लो ऑफ करंट इज नॉट फिक्स्ड। डीसी में करंट का डायरेक्शन इज फिक्स्ड, एसी में इट इज नॉट फिक्स्ड। इन वन ऑफ द रोटेशन इट इज मूविंग लाइक दिस टू दिस, इन अदर वन इट मे मूव लाइक दिस टू दिस। आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, जो भी आपने सेकंड का टाइम, मिनट का टाइम पुट किया होगा इस एसी में, उस हिसाब से करंट का डायरेक्शन बदलता रहेगा। बट नाउ इट इज़ एवरी अप्लायंसेज हैव एसी करंट ही होता है, हम एसी का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दैट इज़ मोर नॉट मोर चीप और समथिंग, बट इट इज़ मोर एडवांस्ड। एडवांस इन द सेंस, इसको मतलब आप लॉन्ग ट्रांजिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है एसी जनरेटर के। एसी जनरेटर क्या मतलब, एसी करंट के हम मीन टू से। एंड डीसी में हाँ, लेकिन इसके साथ एक डिसएडवांटेज भी है। डीसी में क्या होता है, करंट एक ही डायरेक्शन में पास हो रहा है, यानी डीसी क्या करेगा, डीसी करंट विल रिपेल द करंट। मतलब इनके साथ कुछ शॉक भी लगता है ना, तो आप जैसे इसको यहाँ पे इसको शॉक लगा, आपने टच किया, तो आपका हाथ फटाक से छूट जाएगा, आप उसको चिपक नहीं जाओगे, आप क्या होगा, रिपेल करोगे इन द डीसी। बट एसी में व्हाट विल हैपन, अगर आपको चिपक गया तो आपको चिपक गया, आप कितना भी कोशिश करो, यू विल नॉट एबल टू मूव योर हैंड, और आपको जिसने पकड़ा वो भी आपके साथ चिपक गया, जैसे लाइक हंगामा मूवमेंट। ओके, मतलब एक दूसरे को चिपकते जाएंगे, वो एसी में होता है। एसी करंट में इस तरह से होता है, लेकिन ये डिसएडवांटेज है। लेकिन फिर भी एसी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बिकॉज ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजिशन के लिए फ़ायदेकारक है, ज़्यादा वोल्टेज भी होता है इसलिए, ठीक है। तो ये हमने बात किया डीसी जनरेटर एंड एसी जनरेटर की, उसके ऊपर मोर वर्किंग विल डू इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द जनरेटर। हम पहले जनरेटर की बात कर लेते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद द जनरेटर्स फंक्शनिंग, किस तरह से वो फंक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पे आप रीड करते हैं पहले जनरेटर को। We have seen the experiments based on the electromagnetic induction. The current produced in these experiment was very small magnitude, but the same principle can be harnessed for the use of mankind to produce large current. Here, the mechanical energy is used to rotate the current carrying coil in a magnetic field around an axle and thereby producing electricity. समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इंडक्शन इन और जनरेटर। इन अ जनरेटर व्हाट हैपेंस, जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको उसको एक्सेल देना पड़ता है, उसको से रोटेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ओके, यहाँ पे है, यहाँ पे एक्सेल, उसको आप एक्सेल दे रहे हो, आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, और फिर जाके वो रोटेट होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन द करंट विल पास, दैट इज जनरेटर। ओके, जबकि मोटर में क्या था, मोटर में क्या फिनोमिना था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, आपने करंट दिया, तो उसमें रोटेशन हुआ और मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुआ। समझ में आ रहा है? जस्ट अपोजिट, मतलब एक्सेल, मतलब उसको एक्सेल देना पड़ेगा, उसको गाड़ी घुमानी पड़ेगी उसमें। हियर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट द करंट फ्लो। ओके, दिस आई रेड फिगर 4.20, दैट इज दिस वन 4.20, यानी कि ये वाला फिगर की बात कर रहे हैं, जनरेटर की बात कर रहे हैं। shows a copper wire coil ABCD kept between the two poles pieces of the magnet. Two ends of the coil are connected to a current rings R1 and R2. जैसे हमने यहाँ पे S1 S2 नाम दिया था, दिस इज R1 एंड R2 नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है। देन वाया कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 कार्बन ब्रशेस है। बोथ द रिंग्स आर फिक्स टू दी एक्सेल। ये फिक्स्ड है, ये जो हमारी ये जो पार्ट है वो एक्सेल है, वो रिंग्स एक्सेल से फिक्स्ड है, मतलब जो रोटेशन होगा इतने में ही होगा, S1 S2 तक होगा, B1 B2 पे नहीं होगा जो भी रोटेशन होगा।
but there is a resistive coating in between the rings and the axle. The axle is rotated with the help of a machine from outside. उसको हमें क्या करना, रोटेट करना पड़ता है, उसको ऐसे ऐसे मूव करना पड़ रहा है, ओके, मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती है. सो बिकॉज ऑफ दिस द कॉइल ABCD स्टार्ट्स रोटेटिंग. ABCD में रोटेशन होना चालू हो जाएगा, बिकॉज आपने क्या किया है, मैकेनिकल एनर्जी दी है, तो यहाँ पे रोटेशन शुरू हो गया है. ठीक है. द स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस B1 and B2 आर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर. जैसे यू कैन सी दिस B1 and B2 इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर which shows the direction of the current in the circuit. Upon the rotating the axle, the branch AB goes up, okay, direction upward दिखाएगा वो, and branch CD goes down, okay, यानी कि ये क्या होगा, rotate होगा. The coil ABCD will rotate clockwise, this way, clockwise, okay. Then turn the page. According to the Fleming's right-hand rule, electric current is produced in the branches AB and CD in the direction A to B. ओके, जैसे कैसे डायरेक्शन में दिखाया है, A to B एंड C to D, एंड C to D में करंट पास होगा. बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या किया है, रोटेशन मैंने जो दिखाया ना, वो रोटेशन मैंने इस तरह से रोटेशन दिखाया. दैट्स वाई हमारा जो मिला था वो B to A मिला था और D से C मिला था, राइट. बट इन द टेक्स्ट बुक दे हैव रोटेटेड द फिगर इन द लाइक दिस. अगर हमारा ये AB है और ये CD है, तो दे हैव रोटेटेड लाइक दिस. उसने इस डायरेक्शन में रोटेशन दिया है. इसके लिए यहाँ पे करंट A to B और C to D गया है. समझ में आ रहा है, मैंने कुछ गलत नहीं सिखाया है, सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे उनका जो रोटेशन है ये A B C D है. तो मैंने जो रोटेशन दिया था वो D इस तरह से दिया था. अब देखो, ध्यान से देखो, मैंने इस तरह से रोटेशन दिखाया था. इसके लिए मेरा जो करंट है वो B to A था और D से C था. बट हियर इन द टेक्स्ट बुक दे हैव गिवन यू दैट इट इज़ रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन. A to B इस तरह से डायरेक्शन में इस तरह से चेंज हो रहा है. ठीक है. इसके लिए यहाँ पे करंट जो हो रहा है वो A to B और C to D हो रहा है. सेम ही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है. ओके. In the external circuit, the current flows from B2 to B1 and through the galvanometer. If instead of one loop coil, a coil consisting of several turns is used, the current of magnitude several times flows. After a half rotation, the branch AB takes the place of CD. Okay, half rotation मतलब जैसे ये half rotation complete हुआ, उसके बाद क्या होगा, position change हो गया. Okay, CD यहाँ पे आ गया, AB यहाँ पे आ गया. Therefore, the current induced will be goes like DCBA. DCBA is this direction. Okay, it was earlier ABCD, now it is DCBA. So this repeats are okay. Hence the external circuit current flows from B1 and B2 opposite to the previous half rotation. This rotates after every half rotation and alternating current is produced. This is what called a AC generator. Okay, ये पूरा पैराग्राफ मैं वापस रीड करती हूँ. I think I missed this paragraph. But द ब्रांच BA, तो यहाँ तक अगर होता है दैट इज़ DC जनरेटर. ओके, यहाँ पे जो हुआ वो DC जनरेटर हुआ है. अभी अगर आपने क्या किया, यहाँ पे दूसरी भी कॉइल इस्तेमाल की, मतलब अपने दूसरी, यू हैव नॉट यूज अ स्प्लिट रिंग, यू हैव यूज अनदर रिंग. ओके, किस तरह से अनदर रिंग है जस्ट चेक करो. वापस मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना दिया. यहाँ पे कॉइल रखा है. ठीक है, यहाँ पे उसकी रिंग बनाई है. यहाँ पे हमने दूसरी रिंग बनाई है. नाउ वी हैव टेकन अनदर रिंग. ओके, यहाँ पे हमने, यानी दिस रिंग इज़ कनेक्टेड टू, ये इसको कनेक्टेड है और ये इसको कनेक्टेड है. और यहाँ से हमने, ओके, यहाँ से हमने गैल्वेनोमीटर यहाँ पे इस तरह से वी हैव मेड समथिंग लाइक दिस. दो हमने ये, दिस इज कॉल्ड स्लिप रिंग. यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट इज द नेम दे हैव गिवन अस. स्प्लिट. ओके, दिस इज अर्लियर वाज अ स्प्लिट रिंग, नाउ दिस इज स्लिप रिंग. ये हमने स्लिप रिंग का इस्तेमाल किया यहाँ पे. ओके, दो अलग अलग रिंग है. तो यहाँ पे दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. हियर यू हैव S1, हियर यू हैव S2. दिस इज योर, यहाँ पे इसको नाम देते थे X और इसको हम नाम देते थे Y. ठीक है, यहाँ पे हम AC जनरेटर की बात करें किस तरह से फ्लो होगा. तो वापस अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, नाउ विल सी करंट कौन से डायरेक्शन में पास हो रहा है. विल सी दैट, विल चेक दैट. करंट कौन से डायरेक्शन में पास हो रहा है, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम ये ले लेते, वी विल कंसिडर दैट AB इज़ नाउ, जैसे कि हम कहा ये AB है, ये अपवर्ड इस तरह से रोटेट हो रहा है. ओके, नाउ इट्स रोटेटिंग लाइक दिस. AB ऊपर आ रहा है, DC नीचे जा रहा है. ओके, ये AB है, AB ऊपर आ रहा है, DC नीचे जा रहा है, इस तरह से हो रहा है. यानी AB इज़ आउटवर्ड एंड DC इज़ इनवर्ड. ठीक है, अभी हम देखते हैं करंट कौन से डायरेक्शन में पास हो रहा है. फ्रॉम A से चालू करते हैं. तो देखो, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना, बिकॉज वी आर डूइंग जनरेटर पार्ट, सो वी हैव टू यूज राइट हैंड रूल. तो राइट हैंड रूल में योर मैग्नेटिक लाइन्स. ठीक है, मैंने क्या कहा, आपको थंब क्या दिखाएगा,
कि मोशन यहाँ पे हमने एक्सेल दिया, उसको एक्सेल किया, ओके एक्सेल दिया मैकेनिकल एनर्जी, ये रोटेट होने लगा, रोटेट ये ऊपर की तरफ, ये बाहर आ रहा है, यानी ये मेरी तरफ आ रहा है, रोटेशन इज माई टुवर्ड्स मी, तो ये करंट ऊपर डायरेक्शन में दिखा रहा है, इट्स शोइंग अपवर्ड, ओके, यानी ए टू बी. सेम वे विल टॉक अबाउट सी डी. सी डी में करंट कौन सा डायरेक्शन में पास होगा, विल चेक दैट. तो लाइन्स, मैग्नेटिक लाइन्स दिस डायरेक्शन, ये जो है मोशन अंदर की तरफ होगा, ओके, सी डी नीचे अंदर जा रहा है ना, तो व्हाट विल हैपन टू द फ्लो, व्हाट विल हैपन टू द करंट, सी अब मेरा मिडल फिंगर नीचे की तरफ जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, इट्स गोइंग डाउनवर्ड, यानी इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड लाइक दिस. नहीं, करंट कैसे पास हो रहा है, विल चेक दैट. करंट कैसे पास हो रहा है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी से एस टू, एस टू से वाई, और वाई से एक्स, वाई से वाई टू एक्स. करंट इज मूविंग वाई टू एक्स, देन एक्स टू ए टू एक्स टू एस वन, एस वन टू ए, एंड ए टू बी. तो ये सर्किट पूरी कंप्लीट हुई, ये हाफ रोटेशन हुआ. तो वापस हाफ रोटेशन के बाद यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल है, ये कॉइल में यहाँ पे आपका आ गया सी डी, ओके, यहाँ पे आपका आ गया ए बी. हाफ रोटेशन के बाद वो रोटेट होगा रहेगा, राइट. तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी वापस स्प्लिट रिंग है, अटैच कर लो. तो यहाँ पे यू हैव अ स्प्लिट रिंग, अभी यहाँ पे यू हैव एस के ए के साथ एस वन, ठीक है, ए के साथ आपकी ये क्या है, एस वन है, और इसके साथ ओके, और डी के साथ यू हैव एस टू रिंग, यहाँ पे आपकी डी टू एस टू रिंग है, ठीक है. ये हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ठीक है. तो यू हियर दिस इज़ योर एस वन एंड दिस इज़ योर एस टू, ठीक है. दिस इज योर, हियर इज योर एक्स एंड हियर इज योर वाई, करेक्ट. या सो नाउ वापस हम क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक लाइंस पास कर लिया हमने. अभी देखो ये ए बी, ये सी डी, ठीक है, ये ऐसे हो गया. हमने क्या करा, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं ना, वी आर रोटेटिंग लाइक दिस, कि ए बी ऊपर आ रहा है, सी डी नीचे आ रहा है. वापस ये आ गया, वापस अभी सी डी ऊपर आएगा, ए बी नीचे जाएगा. तो सी डी ऊपर आएगा, तो वापस जो करंट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. अभी करंट कैसे पास होगा, विल चेक दैट. सो डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए टू एस वन, एस वन टू, एस वन टू, एस वन टू कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एक्स आएगा एक्चुअली, सॉरी एस वन के साथ एक्स है ना, यहाँ पे वाई है. सी एस वन के साथ एक्स है और एस टू के साथ वाई है, तो हमें इसी डायरेक्शन में आना है एस. तो यहाँ पे अभी करंट एक्स में आया, एक्स से वाई में गया, वाई से एस टू में जाएगा, एस टू से डी में जाएगा, डी से सी में जाएगा. तो यहाँ पे जो करंट हुआ वो कौन सी डायरेक्शन हुआ, एक्स टू वाई, एक्स से वाई हुआ. ये एसी जनरेटर हुआ, सीधा एसी जनरेटर. ये एसी जनरेटर में क्या हुआ, जो करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ. इन द अर्लियर हाफ रोटेशन द करंट हैज़ पास फ्रॉम वाई टू एक्स. In the next half cycle the current has passed from x to y because of using this kind of rings. ये जो स्लिप रिंग का इस्तेमाल हमने किया, ये हमने अलग टाइप का रिंग का इस्तेमाल किया, स्लिप रिंग का इस्तेमाल किया है. Here it was स्प्लिट रिंग, ओके, स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल किया था, जो करंट एक ही डायरेक्शन में x to y है. दिस इज व्हाट स्लिप रिंग वेर यू हैव द करंट इज इन डिफरेंट डायरेक्शन. ये जो डायग्राम्स है ना उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना एसी जनरेटर के लिए. तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, इन हाफ रोटेशन इट इज़ एक्स टू वाई टू एक्स था, इन अनदर हाफ इट इज़ एक्स टू वाई. अगेन नेक्स्ट हाफ साइकिल में इट विल अगेन बैक टू वाई टू एक्स, नेक्स्ट हाफ साइकिल में इट विल बी अगेन बैक टू वाई टू एक्स टू वाई, लाइक दिस एक्स टू वाई, वाई टू एक्स, वाई एक्स टू वाई, एक्स टू वाई, इस तरह से होता रहेगा. तो दैट इज कॉल्ड एसी जनरेटर. ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट दिस, what will be required, okay, this paragraph now. But the branch BA is always in a contact with the brush B1 and the branch DC is always in the contact with B2. Hence the external circuit current flows from B1 to B2, that is opposite to the previous half rotation. This repeats after every half rotation and altering current is produced because current is not in the same direction, alteration होता रहता है. This will called a AC generator. I hope you are clear here. This is not the AC generator. This is given to you is a DC generator का picture दिया आपको. So you have two types of generator, AC and DC. In AC, the current is altering after every half rotation or after every interval of time. DC current is constant; it is going in the same direction. So what will require to make the DC generator? The DC does not change the direction in the external circuit line. Does not change the direction of current. To achieve this, a split ring is fixed on the axle like a split ring is used in the electric motor. Because of this, तो split ring का इस्तेमाल DC के लिए किया जाता है और slip ring का इस्तेमाल AC के लिए किया जाता है. Because of this arrangement, the branch of the coil going upward is always in a contact with the one brush and branch going downward is always in a contact with other brush, and hence the current flows in one direction in the external circuit. This is called DC generator. Understood?
गुड. नाउ यू कम बैक टू योर AC एंड DC का ये जो पैराग्राफ बाकी था हम इसकी बात करते हैं. सो फार यू सी DC जनरेटर, सी दिस सोर्स इज ऑलवेज फिक्स्ड. ये हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं इस टाइप का सेल. ये जो वेव जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दैट वेव जैसा स्ट्रक्चर इज ऑल्टरनेटिंग करंट. व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट? यू सी दिस वेव स्ट्रक्चर. ओके, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइम एंड करंट का ग्राफ बना दिया. टाइम, हियर इज अ टाइम, हियर इज अ ग्राफ, हियर इज अ करंट. तो फर्स्ट हाफ पहले 5 सेकंड में क्या हुआ कि ये हमने 1 अमीटर तक देना है हमें, करंट कितना फ्लो करना है 1 अमीटर तक. तो 1 अमीटर तक गया, वापिस से नीचे आया इन अनदर हाफ साइकिल, वापस से नेक्स्ट टाइम वो नीचे गया, ऊपर आया. ये जो वेव जैसा शेप बनता जाएगा. ये जो वेव जैसा शेप बना ना, इसके लिए यहाँ पे जो साइन है वो वेव की है. दैट इज कॉल्ड AC जनरेटर बिकॉज इट इज लाइक गोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. एंड वेयर इज दिस वन, इट इज शोइंग यू DC बिकॉज हियर यू सी इट्स अ स्टेबल. अब जितना भी टाइम करते जाओगे करंट ऐसे ही मूव होगा. करंट का जो लाइन है वो हमेशा लीनियर ही रहेगा. दैट इज कॉल्ड DC. ओके, so far we have learnt about a non-oscillatory current flowing in a one direction in a circuit from the cell to cell. Such a current is called DC. As against the current changing its magnitude and direction after a equal interval of time, which is called AC. So this is the minor difference between AC and DC. DC जो हमने अभी तक करंट को जो सीखा है वो DC ही सीखा है. तो AC is something new, like उसमें क्या होता है, आफ्टर इक्वल इंटरवल टाइम इट्स करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है. The direct current can increase, can be stable or it can be reduced. ये direct current DC की बात कर रहे हैं. Also, but it is not oscillatory. Oscillatory means ऐसे come back, come back ऐसे नहीं होगा. वो stable ही रहेगा, या तो नीचे या तो ऊपर या तो stable. Alternating current जो है वो oscillatory है. Like you can see this alternating. Okay. So it's shown in the figure. It increases to a maximum. It increases to the maximum and decreases to 0. Then again it goes down negative. Again 0. वापस ऊपर मैक्सिमम, वापस 0, वापस नीचे मिनिमम, वापस 0, लाइक दैट. सो इट इज़ रिड्यूस. हैव बीन यूज्ड टू शो द ऑसिलेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट ऑकर्स इन द साइनसॉइडल मैनर. साइनसॉइडल मीन्स वेव मैनर विद द टाइम एंड हैंस इट इज शोन एज सिम्बॉल. दिस वेव जैसा सिम्बॉल दिखाया है. जबकि DC इज वन डायरेक्शन बट द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन द पीरियोडिक मैनर इन वन साइकिल इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन. फॉरवर्ड रिवर्स लाइक दैट. ओके. So in India, power stations generating electricity one cycle against in 150 सेकेंड, मतलब 50 हर्ट्ज. इन इंडिया हमारे कंट्री में कितना करंट 1 सेकेंड में पास होता है? 50 सेकेंड. US एंड अदर कंट्री हैव 60 हर्ट्ज है, हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज है. AC की जो कैपेसिटी वो क्या है? 50 हर्ट्ज. यानी कि इन 1 सेकेंड 50 वेव्स. सी 50 वेव्स मतलब दिस इज 1 वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, लाइक दैट. तो 1 वेव यू हैव 2 डायरेक्शन, 1 2. सेकेंड में थर्ड फोर्थ. इन्हें 50 वेव्स है और 100 डायरेक्शन है. समझ में आ रहा है? सो 50 साइकिल्स पर सेकेंड. व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. तो ये AC का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट. अगर हमें यहाँ से 300 किलोमीटर दूर करंट पास करना है तो वी आर गोइंग टू यूज AC करंट. It is beneficial to have AC to form as it is result into minimum power loss during transmission. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो फॉर योर जनरल नॉलेज. फॉर प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए DC का इस्तेमाल किया जाता है जस्ट बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन. The home supplies alternating current. We have learned in the previous class about the precautions to be taken using the electricity, that you should not touch with the wet hand, you should use rubber or some bad insulators. Okay. So hence we are done with this entire chapter. And start learning, start writing this chapter as homework and start preparing this chapter. Okay, we'll be taking orals anytime. Anytime means obviously I inform you one day before. You start preparing it. This chapter is very very important students. It is divided into 3 parts. अगर आपको ये भूल गए हो आगे के चीज़ें तो आप पहले वो रिवाइज करो, रिपीट करो, फिर ये वीडियो देखना. Okay, so we are now done with the 4 chapters out of 10. सो 1 to 4 हो गए हैं, अभी 5 to 10 बाकी है जो हम कंटिन्यूएशन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस. ओके, चलो बाय.